Hello everyone. So in the last lecture we have seen the concept of linear combination of vectors. We have seen this concept in detail with few examples. Then we move to the concept of span of a set. What do we mean by span of a set of vectors? And then we have seen a spanning set for a vector space. When a set with finitely many vectors will span whole space, whole vector space. So we have seen these concepts in the last lecture. In moving forward, we will see few more concepts in this lecture regarding linear combination of vectors, which will generate a basis. So the main object of this lecture is to define the basis. What do we mean by basis? But before defining this term, I need few technical terms like linearly dependent and linearly independent vectors. So the whole lecture will be focusing on linearly dependent, linearly independent vectors, and then what do we mean by basis of a vector space, then what will be the dimension of a vector space. Then we will see if time will allow us, we will see what are the finite dimensional vector spaces and what are the infinite dimensional vector spaces. We will elaborate this concept with examples that will be relevant for our course. So let me define linearly dependent and independent. So the concept is linearly dependent and linearly independent. वेक्टर्स, और फिर हम बाद में सेट्स का भी लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करेंगे. Vectors are set. So in earlier lecture, while solving the system of linear equation, we have seen the concept of homogeneous system of linear equation. तो लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स का कंसेप्ट हमको सीखने के लिए हमें होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो हमें आना ज़रूरी है. ठीक है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ. होमोजीनियस के केस में अगर आपका जो इक्वेशन है ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज अ homogeneous system and this system has always solution. So the homogeneous system is always consistent. We have seen this concept in our earlier lectures, and it has unique solution, means it has trivial solution. Only trivial solution का होता है, only trivial solution का होता है जब rank of the coefficient matrix A equal to number of unknowns हो जाए. This is the condition for getting unique solution या trivial solution in case of homogeneous system of linear equation. And for non-trivial या infinitely many solutions, and whenever there exists a non-trivial solution, it will not exist uniquely. There will be infinitely many non-trivial solutions. अब non-trivial solution में क्या होगा, कब होगा ये? So it is when rank of A is less than number of unknowns. So this is the revision for you. जिनको अभी होमोजेनियस सिस्टम की जानकारी नहीं है तो आप यहाँ समझिएगा. ठीक है, तो फिर से वही बात आ गई. हमने रैंक सीखा था पहले दूसरे लेक्चर में, और देखो अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है रैंक का कंसेप्ट. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड द लीनियर अलजेब्रा कोर्स. विदाउट रैंक यू कांट मूव. So let me define linearly dependent and independent vectors with the help of this homogeneous system. Why I am revising you these concepts? So it will tell later. So suppose we have few vectors b1, b2, b3. Out of these three vectors, you can form a homogeneous equation
with three unknowns, because you have three vectors, so you can find a equation, say xb1 plus xb2, sorry, not xb2, yb2 plus zv3. व्हाट इज दिस फॉर यू? हमने आपको इसके पीछे वाले लेक्चर बताया था लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो आ जाए तो ये बन गया होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बन गया ये? होमोजीनियस इक्वेशन। तो b1 b2 b3 का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो हो सो दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। और अगर इस होमोजीनियस इक्वेशन के पास ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन हो, कौन सा सोल्यूशन हो? ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन, तो ऐसे केस में आप अपने इन वेक्टर्स को क्या बोलोगे? दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, सॉरी independent. So if it has only trivial solution, then vectors b1 b2 b3 are called li, linearly independent. क्या कहेंगे? linearly independent. तो उसी तरह सपोज करो आपके पास 10 वेक्टर हैं, b1 b2 अप टू b10। अब हमें चेक करना है ये li है ld है, linearly डिपेंडेंट है, linearly इंडिपेंडेंट है। तो आप क्या करोगे? इन 10 के 10 वेक्टर का एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखोगे। अब कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन में वो वेरिएबल्स आते हैं, तो आप स्टार्ट करो x1 b1 प्लस x2 b2 प्लस अप टू डॉट डॉट x10 b10 and make this linear combination equal to 0. It will give a homogeneous system of linear equation, है ना? when you solve further you will get a homogeneous system of linear equation. Now if this system has only trivial solution, then your vectors are li. If only trivial solution, मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू अप टू x10 इक्वल टू 10 ओनली। ठीक है, इम्प्लाइज वेक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके? li हो जाएंगे। इफ इट हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस आल्सो, अगर इसके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, किसके पास? इक्वेशन वन के पास। इक्वेशन वन के पास अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो क्या आ जाएगा? यहाँ से एल आ जाएगा। अब ये ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप उसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखो, उसका रैंक निकाल लो। अगर रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन आ जाए तो एल डी एल आई, अगर रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन आ जाए तो वहाँ पर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे उस केस में, और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के केस में आपके वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? एल डी हो जाएंगे। दिस इज द ओनली कंसेप्ट। ठीक है, तो आई एम डिफाइनिंग दिस कंसेप्ट। सो डेफिनेशन लिखिए, क्योंकि हमको फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स पे ही काम करना है, इसलिए मैं एक सिंपल डेफिनेशन लिखता हूँ। अ सेट ऑफ वेक्टर्स, कौन कौन सा सेट है? अ सेट ऑफ वेक्टर्स S इक्वल टू b1 b2 अप टू डॉट डॉट करके bn is called, a set of vectors S is called पहला linearly dependent if, अब देखो n वेक्टर्स हैं, n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। क्या लिखोगे आप? x1 b1 प्लस x2 b2 अप टू डॉट डॉट करके xn bn। इफ दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, कम से कम एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन अगर आप दिखा देते हो तो ये सेट ऑफ वेक्टर्स आपका क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। दूसरा, लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा? इफ दिस इक्वेशन x1 b1 प्लस x2 b2 प्लस अप टू डॉट करके xn bn एंड दिस इज इक्वल टू 0 हैज ओनली ट्रिवियल
सोल्यूशन। अगर इसके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन है इस होमोजेनियस सिस्टम के पास, तो उस केस में आप कहोगे अपने सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो सेट, या वो जो वेक्टर्स हैं आपके पास वो लीनियरली इंडिपेंडेंट्स हैं। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो क्लियरिटी आएगी। एग्जाम्पल्स, आसान से एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले R2 के ऊपर बात करते हैं। R2 हमने वेक्टर स्पेस लिया और सेट हमने चूज़ कर लिया जिसमें 1,0 और दूसरा ले लिया 1,1। सो दिस सेट हैज़ ओनली 2 वेक्टर्स। सॉरी, अब हमें चेक करना है कि ये सेट Li है Ld है। चेक एसिस Li और Ld। तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। लेट x1,0 प्लस y1,1 इक्वल टू 0। और ये कोई ऑर्डिनरी ज़ीरो नहीं है, ये R2 का ज़ीरो, और R2 का ज़ीरो ऐसा दिखता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि किसके जीरो की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x,0 और यहाँ से आ जाएगा y कम। अब देखो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपको तो डायरेक्ट लैंड करना है इस वाले स्टेप में वहाँ से, एंड दैट इज इक्वल टू 0,0। अब R2 के 2 वेक्टर कब इक्वल होंगे, जब उनके कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। इसका मतलब पहला कंपोनेंट राइट साइड के वेक्टर के इक्वल होगा और दूसरा कंपोनेंट राइट साइड के दूसरे वेक्टर के इक्वल होगा। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गई है, पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ से होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस, ट्रिवियल सोल्यूशन है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। अगर आप इसका, चलिए मैट्रिक्स बनाना सीखते हैं। कैसे मैट्रिक्स, अब ये होमोजीनियस सिस्टम है आपके पास, ये 2 इक्वेशन 2 अननोन, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बताइए क्या आएगी। वैसे तो विदाउट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्योंकि बड़े सिस्टम में हमको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम x के कोएफिशिएंट लिखेंगे, फिर हम y के कोएफिशिएंट लिखेंगे। क्या इक्लान फॉर्म में है, आंसर इज यस, दिस इज इन द इक्लान फॉर्म। अब एक बताओ रैंक कितना है, व्हाट इज द रैंक ऑफ ए। 2 लीडिंग एलिमेंट हैं, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। 2 ही अननोन है आपके पास। And this implies S is Li, and ठीक है, this implies system has this system, which system इसका नाम दे देते 1। this implies 1 has only trivial solution, और अगर ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो आपके वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, Li हो जाएंगे। एक इसी में एग्जांपल करते हैं, दूसरा एग्जांपल R2 में ही एक दूसरा एग्जांपल करते हैं। देखिए इस बार मैंने s को बदल दिया 1,1, 1,3, 0,2, 3 वेक्टर कर दिए मैंने। अब मुझे चेक करना है ये सेट Li है कि Ld है। तो सबसे पहले हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। तो वी हैव 3 वेक्टर्स, सो वी रिक्वायर 3 अननोन्स, सो इट विल बी अ इक्वेशन इन 3 अननोन्स। तो जेड इंट्रोड्यूस कर दो, एंड ये ऑर्डिनरी जीरो नहीं है, 0 0 है। अब देखो मैं डायरेक्ट स्पून फीडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं अब आपको डायरेक्ट ये स्टेप लिख रहा हूँ। यहाँ से पहले वाले कंपोनेंट, पहले वाले वेक्टर से x आएगा, दूसरे वाले से प्लस में y आएगा, तीसरे वाले में 0 हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। अब सेकेंड कंपोनेंट लिखेंगे तो x प्लस 3y प्लस 2z दैट इज इक्वल टू 0,0। अब यहाँ से क्या आएगा इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 0। अब देखते हैं, अब कॉपी, अब देखो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आया कि नहीं आ गया, और यही आपने सीखा है, इसी को सॉल्व करना। अब यहाँ से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आएगी, व्हाट इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए। सबसे पहले आप ए के कोएफिशिएंट को लिखेंगे, कितना आएगा, एक्स के कोएफिशिएंट लिखोगे पहली इक्वेशन से 1, दूसरी इक्वेशन से 1, वाई के कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन से 1, दूसरी इक्वेशन से 3, और तीसरी पहली इक्वेशन में जेड का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 0 पुट कर दो, यहाँ पर 2 है। क्या ये मैट्रिक्स इक्लान फॉर्म में है, योर आंसर इज नो, दिस इज द लीडिंग एलिमेंट, बट इसके नीचे 0 नहीं है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो R2 माइनस क्या कर देंगे, R1 कर देंगे, तो पहले वाले उसमें क्रिएट हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 0 2। नाउ दिस मैट्रिक्स इज इन इक्लान फॉर्म, दिस इज द लीडिंग एलिमेंट एंड दिस इज द लीडिंग एलिमेंट, सो वी हैव लीडिंग एलिमेंट इन ईच रो, नो प्रॉब्लम। ओके,
इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक रो में लीडिंग एलिमेंट होगा, बट मैक्सिमम रोज जो थी वो सारी हमारी कवर हो गई। तो यहाँ से रैंक ऑफ ए बताओ कितना आया, 2 आया, एंड दैट इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स तो 3 थे। तो अगर आप सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली नहीं है। और क्योंकि रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम है तो ये किसको क्या सिग्नल दे रही है आपको? ये कह रहा है कि सिस्टम हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। इसका मतलब सिस्टम के पास सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन ना होकर के नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी होंगे। और अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो गए तो जो आपका सेट है, सेट ऑफ वेक्टर्स है, वो एलडी हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एस इज लीनियरली डिपेंडेंट, एलडी। ठीक है, तो ये चीज़ है। एक चीज़ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, अगर आप कहीं सपोज करो आर एन डायमेंशन R5 है मान लो, अगर आपके सेट में 5 से ज़्यादा वेक्टर हैं, किससे ज़्यादा वेक्टर हैं, 5 से ज़्यादा वेक्टर हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो सेट आपका क्या हो। इफ़ यू हैव वेक्टर्स greater than number if you have number of vectors greater than 5, then that set will be surely linearly dependent। ठीक है, ये ज़रूर हम कह सकते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल से इसको करते हैं, और मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, टेक b इक्वल टू P3R। P3 आप जानते हैं, P3R का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स लेस देन आर इक्वल टू डिग्री 3। 3 या 3 से कम डिग्री वाले जितने पॉलिनोमियल है दुनिया के, जिनके कोएफिशिएंट रियल्स हों, ऐसे पॉलिनोमियल कलेक्शन को हमने P3R बोला। और P3R एक वेक्टर स्पेस होता है। क्या होता है? वेक्टर स्पेस होता है। तो एग्जांपल के लिए मैं कुछ वेक्टर्स ले रहा हूँ। सपोज करो S मैंने लिया, एक मैंने वेक्टर ले लिया 1 + x, दूसरा वेक्टर ले लिया मैंने x² - 1, तीसरा वेक्टर ले लिया मैंने 5, और चौथा वेक्टर ले लिया मैंने 1 - x³। इतने वेक्टर मैंने ले लिए। अब मुझे चेक करना है कि मेरे ये जो वेक्टर्स हैं, 4 वेक्टर, क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। अब देखो, सोच रहे होंगे यार यहाँ से इक्वेशन कैसे बनेगी। तो देखो कैसे बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वेरिएबल x ले लिया। तो अब 4 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और एक वेक्टर ये है। सो यू हैव 4 वेक्टर्स, राइट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। लेट A1 टाइम्स 1 + x, आप कुछ भी अननोन यूज़ कर सकते हो, कोई फिक्स थोड़ी है, प्लस A3 × 5 प्लस A4 × 1 - x³ इक्वल टू 0। अब देखो, ये कोई ऑर्डिनरी ज़ीरो नहीं है, ये जीरो है वेक्टर स्पेस का। ये किसका जीरो है? वेक्टर स्पेस का। और B कौन है? P3R। P3R में कौन है? पॉलिनोमियल्स। तो ये क्या है? जीरो पॉलिनोमियल है। क्या है ये? दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल। दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है, जीरो पॉलिनोमियल मतलब होता है 0 + 0 × x + 0 × x² + 0 × x³। दिस इज द जीरो पॉलिनोमियल। ओके, तो ये है जीरो राइट साइड में। अब आपको क्या करना है, x के कोएफिशिएंट को, y के कोएफिशिएंट को, सबको प्लग करो, एक साथ करो। कांस्टेंट टर्म पहले अलग कर लो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? A1। इस वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगा? -A2। मैं कांस्टेंट टर्म्स को भी अलग कर रहा हूँ। यहाँ से आ जाएगा प्लस का 5A3, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का A4। ये तो सारे के सारे नंबर्स हैं, कांस्टेंट हैं। प्लस नाउ कलेक्ट ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ x। तो पहली वाली इक्वेशन से देखो आ जाएगा A1, यहाँ कोई x नहीं, यहाँ पर भी कोई x नहीं, तो A1x आ गया। प्लस नाउ कलेक्ट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x²। तो यहाँ से आ जाएगा A2x²। अब नाउ कम टू x³, तो माइनस क्या आ जाएगा? A4x³ दैट इज इक्वल टू 0। एंड दिस इज नॉट अ ऑर्डिनरी जीरो। मैंने आपको बताया ये जीरो पॉलिनोमियल है। तो जीरो पॉलिनोमियल में x का भी कोएफिशिएंट जीरो होगा, y का भी कोएफिशिएंट, और x² कोएफिशिएंट, x³ का कोएफिशिएंट। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? A1 - A2 +
5 टाइम्स A3 प्लस A4 दिस इज इक्वल टू 0। फिर दूसरे वाले से A1 इक्वल टू 0, तीसरे वाले से A2 इक्वल टू 0 और चौथे वाले से A4 इक्वल टू 0। अब इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएं, डायरेक्ट वैसे कर सकते हैं। A1 0, A2 0, A4 0, तो इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A4 0 आ जाएगा, A3 0 आ जाएगा, तो A1 A2 A3 A4 सब कुछ 0 आ गया। बट हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं इसकी। देखो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं, A इक्वल टू कितने अननोन है, जितने अननोन उतने कॉलम, 4 अननोन है, A1 A2 A3 A4। A1 के कोएफिशिएंट देखो क्या है, पहली इक्वेशन से 1, दूसरी इस इक्वेशन से 1, बाकी सब में 0। अब नाउ राइट द सेकेंड कॉलम फॉर A2, तो कोएफिशिएंट ऑफ A2 इज -1, यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से 0। A3 में यहाँ पर 5 आ गया, बाकी सब जगह 0 हो गया। A4 में 1 आ गया, 0 0 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 1। क्या ये आपकी मैट्रिक्स इक्लान फॉर्म में है? नहीं है, इसके नीचे 0 है ही नहीं, बना लेते हैं। ये काम तो हमको बहुत अच्छे से आता है, इवन यही हमको अच्छे से आता है, और यही अगर अच्छे से आता है तो पास होने के लिए आपने लगभग अपना काम कर लिया है। तो 1 -1 0, 0 -1 0 -1 +1, यहाँ -5 और यहाँ कितना जाएगा -1। अब नाउ बाकी हमें रोज़ में कोई इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से ये चीज़ें आ गई। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले एलिमेंट के नीचे हमने 0 बना दिया। नाउ कम टू सेकेंड एलिमेंट, अभी भी इक्लान फॉर्म में नहीं है, तो और करेंगे हम, तो हम करेंगे R3 में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ R2। अब देखते हैं यहाँ से कितना जाएगा, 1 -1 5 1 0 1 -5 -1 0। अब R3 - R2, तो 1 -1 0 0 + 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा 0 + 1 1, और यहाँ से 0 0 0 1, ये आ गया। तो यहाँ से हमने देखा ये मैट्रिक्स किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, अब इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट हो गई आपकी। अब इस मैट्रिक्स का बताइए रैंक कितना है, ये भी है देखो। द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 4, बिकॉज देर आर 4 लीडिंग एलिमेंट्स एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। कितने अननोन्स हैं, 4 है। सो दिस इम्प्लाइज सिस्टम हैज ओनली trivial solution and this implies S is Li। अगर ट्रिवियल सोल्यूशन है तो S क्या हो जाएगा, Li हो जाएगा। तो वेक्टर स्पेस के Li LD चेक करने का कैसा भी क्वेश्चन आए, आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से तुरंत खटाक दे आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखनी है, और खटाक दे आपको किस में कन्वर्ट करना है, इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तुरंत आपको उसकी रैंक पता लगानी है, और रैंक से आपको नंबर ऑफ अननोन को मैच कराना है। अगर इक्वल आ जाए तो Li, अगर नॉट इक्वल आए, लेस देन आए, तो क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द Li एंड LD। गॉट द आइडिया। अब आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। पहला S को मैंने लिखा 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 -1 3 4। एक सेट ये है 4 वेक्टर का, तो ये R4 का सबसेट है ये। ठीक है, आप ये सब चेक करो, चेक Li एंड LDनेस। एक और दूसरा लेते हैं 1 1 + x 1 + x 1 + x² 1 + x + x² + x³। इसको चेक करो Li है कि LD है। ऑफ कोर्स ये किसका है, P3 आ ले लो, P4 आ लो, जो आपको लेना है। ठीक है, P3 ले लो आप। एक और सेट लेते हैं 1 -1 1 0 1 1 3 0 0, ये सेट आ गया। ठीक है, इन सारे वेक्टर्स को आपको चेक करना है कि Li है कि LD है। एक और मैट्रिक्स का दे देता हूँ आपको, -1 0 0 0 -1 0 -1 0 -1
0 -1 0 1 0 0 0 1। ये आपको चेक करना ये एल आई है कि एल डी है। आपको सिर्फ इक्वेशन में फोकस करना है, ये मैट्रिक्स से डरना नहीं है आपको, है ना। अगर ये तो आपको क्या लिखना है, अगर ये मैट्रिक्स A1 मैट्रिक्स है, ये A2 मैट्रिक्स है, ये A3 मैट्रिक्स है, ये A4 मैट्रिक्स है, तो आप सिंगल से इक्वेशन बना दो A1 प्लस A2 प्लस A3 कैपिटल A3 प्लस A4 कैपिटल A4 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको 4 इक्वेशन मिलेंगी, 4 अननोन्स होंगे, ठीक है। अगर रैंक आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 4 के इक्वल आ जाए तो आपका ये जो सिस्टम है होमोजेनियस सिस्टम ये वाला, ये इसके ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे ओनली, और ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे तो आपका सेट क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा, LI हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा LI और LD का, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप ये सारे लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। नाउ आवर एम इज टू डिफाइन द बेसिस। नाउ वी आर मेच्योर इनफ टू डिफाइन द टर्म बेसिस। हालांकि बहुत हैवी टॉपिक है ये बेसिस, बट इसको हम बहुत स्लाइटली कवर करेंगे। बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो एक्चुअल में बेसिक क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। किसी वेक्टर स्पेस का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो बेसिस होता है, मतलब दैट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब उससे और नीचे नहीं गिर सकते हैं हम, अगर हमने उससे और नीचे कुछ किया तो हमारा घर नहीं बन सकता है। जिस तरह से ब्रिक्स, ईंटें आपके घर की फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनके बिना आप घर नहीं बना सकते हो। अगर आपने एक भी ईंटा निकाल लिया तो घर आपका गिर जाएगा। वही सिचुएशन यहाँ पर वेक्टर स्पेस की है। अगर आपने बेसिस से एक भी वेक्टर रिमूव कर लिया तो जो आप घर वेक्टर स्पेस बना रहे थे वो नहीं बनेगा फिर, ठीक है। तो जो काम ब्रिक्स का है घर बनाने के लिए, वही काम है बेसिस का वेक्टर स्पेस बनाने में, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस एक बहुत बड़ा घर है जिसके अंदर छोटे छोटे वेक्टर्स हैं, लेकिन उन्हीं कुछ वेक्टर में से कुछ इतने अच्छे वेक्टर्स हैं कि अगर आप उनको निकाल के कलेक्ट कर लो तो ये पूरे के पूरे वेक्टर्स को जनरेट कर देंगे, स्पैन कर देंगे। इसका मतलब वो उन फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से पूरा का पूरा आपका स्पेस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज करो आपके पास ये पूरा का पूरा एक वेक्टर स्पेस है। इसके अंदर से हमने 2-3 वेक्टर उठाए, B1 B2 और B3। अब मैं इन तीनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। आई कैन राइट XB1 प्लस YB2 प्लस ZB3। और ये कितने लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, एज मैनी चॉइसेस ऑफ XYZ। जितनी चॉइसेस आप XYZ की चूज कर सकते हो उतने मैनी वेक्टर्स यू कैन जनरेट। सो इन द स्पैन ऑफ दीज वेक्टर्स B1 B2 B3, हाउ मेनी वेक्टर्स विल यू गेट, यू विल गेट इनफाइनेटली मैनी वेक्टर्स, ठीक है। अभी मैं फील्ड पर नहीं जा रहा हूँ, अगर मैं फील्ड के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन कर दूंगा तो फिर नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि वी आर डीलिंग विथ ओनली रियल और कॉम्प्लेक्स फील्ड, सो इन दैट सिचुएशन this span will have infinitely many vectors, okay. So finite number of vectors are generating a infinite set of vectors. That's why we are saying these vectors as a building block. So we have to recognize those vectors which are really building block of the given vector space, and after recognition we give them a very important name. That name is basis. I hope you are ready to define the concept of basis. A set, let capital B be a vector space a set S equal to B1 B2 Bn is called a basis. There may be different ऐसा नहीं कि एक घर को बनाने के लिए आप एक ही तरीके से बना सकते हैं, यू मे हैव डिफरेंट अप्रोचेस। उसी तरह से वेक्टर स्पेस को जनरेट करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वेक्टर से उसको जनरेट करेंगे। देयर मे बी चांसेस कि एक से
अलग वेक्टर्स मिल जाए आपको जो उसी सेट को जनरेट कर दे, तो वो भी बेसिस कहलाएंगे, ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करा दे। सो अ सेट ऑफ वेक्टर्स, उस सेट में वेक्टर्स होंगे, हाथी घोड़े नहीं होंगे, वेक्टर्स होंगे। अ सेट ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड अ बेसिस इफ स्पैन ऑफ एस इक्वल टू होल वेक्टर स्पेस पी। मतलब एस पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस बी जनरेट कर दे। इसका मतलब क्या हुआ? स्पैन ऑफ एस इक्वल टू बी क्या है? स्पैन ऑफ एस का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल दी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन एस। एस के अंदर जितने वेक्टर्स हैं उन सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन आप बना लो, जितने लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हो सब कलेक्ट कर लो, और वो कलेक्शन अगर बी की इक्वल आ जाए तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे? बेसिस। एक चीज़ मैंने मिस कर दी इसमें, इफ स्पैन ऑफ एस इक्वल टू बी देर आर टू थिंग्स। फर्स्ट, एस इज एल आई, पहला तो एस आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरा स्पैन ऑफ एस इक्वल टू पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। तो अभी अभी आपको मैंने लीनियरली इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट समझाया है, कैसे कैसे करते हैं। होमोजीनियस सिस्टम बना के ट्रिवियल सोल्यूशन देखते हैं, अगर ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन तो एल आई, अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तो एल डी। स्पैन का भी कंसेप्ट हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देख रखा है, तो इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट डील फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, इट इज़ अ वेरी ईजी कंसेप्ट। Okay, so let me take few examples on it so that you get clarity on it. Okay, so one more thing I want to add here. If span of s equal to b, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका वेक्टर स्पेस ये है b, और यहाँ से एक छोटा सा हमने पिद्दी सा सबसेट उठाया s, अब इस सेट को बोल रहे हैं इस ये पूरा का पूरा ये घर जनरेट कर देगा ये वाला। तो ये कब जनरेट करेगा? जब ये एल आई हो जाए और ये पूरा का पूरा क्या हो जाए? स्पैन ऑफ एस की इक्वल आ जाए, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि बी के अंदर से आप कोई भी वेक्टर उठाओ, इस वाले वेक्टर को आप इस कैपिटल एस के अंदर जो वेक्टर है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप हमेशा लिख सकते हो। अगर स्पैन ऑफ एस इक्वल टू बी है, इसका मतलब इफ यू चूज एनी वेक्टर फ्रॉम कैपिटल बी, यू कैन ऑलवेज एक्सप्रेस दैट वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन एस। गॉट द आइडिया? This is how this concept will work. Okay. Example. Check the basis. पहला b इक्वल टू मैंने ले लिया R2 और s को मैंने ले लिया 1,1 एंड 2,2। अब चेक करना ये बेसिस है कि नहीं। तो बेसिस चेक करने के लिए आपको दो चीज़ें चेक करनी है। पहले तो आपको चेक करना है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो चेक करते हैं, सोल्यूशन देखिए। लीनियरली डिपेंडेंट के लिए क्या करना है आपको? x इंटू 1,1 प्लस वाई इंटू 2,2 इक्वल टू 0,0 चेक करना है। यहाँ से क्या आया? x प्लस 2i, यहाँ से x प्लस 2i दैट इज इक्वल टू 0,0। दिस इम्प्लाइज x प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या आपको सिस्टम मिला? सो फ्रॉम हियर वी हैव गॉट दीज थिंग्स। So let me write down the coefficient matrix of this system. So this is 1, 1, 2, 2. Now convert this matrix into echelon form. What is the next row operation? R2 minus R1. Create 0 below this one. So 1, 2, 0, 0. So you got only one leading element. So rank of the coefficient matrix equal to 1, and that is less than number of unknowns. This implies your system has non-trivial solution. This implies system has a non-trivial solution. If system has a non-trivial solution,
then the corresponding vectors are linearly dependent. If it has a non-trivial solution implies S is LD, और अगर LD है तो बेसिस के पास हमें जाना ही नहीं है. We do not move further. ठीक है. So this implies S is not basis. ठीक है. अच्छा, इसका स्पैन भी चेक कर लेते हैं क्या है. वैसे स्पैन अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है. एक भी दो में से कोई एक भी कंडीशन अगर फेल कर रही है तो बेसिस नहीं होगा. यू डिड नॉट टू चेक ऑल द कंडीशंस. इफ यू गॉट वन condition which is failing, then you need not to move further. So let me write the span of S. What is the span of S? By definition, it is the linear combination of vectors from S, and there are two vectors in S, so you will take a linear combination of these two vectors only. So write down it as a x times 1 comma 1 plus y times 2 comma 2, where x and y are coming from your field of real numbers, and that is equal to x plus 2y comma x plus 2y. X comma y belongs to R. So now you change x and y, you will get different of vectors inside the span of S. In particular, suppose you have chosen x and y both 0, then what you will get? So this is the linear combination of vectors. Okay, this is the form of linear combination. Suppose you have chosen x equal to y equal to 0, then what is the linear combination in that case? It will be 0 comma 0. Suppose you have chosen x equal to y equal to 1, then what will be the form of the linear combination? It will be substitute x equal to 1 and y equal to 2, y equal to 1. You will get 3 comma 3. In this way you will get all the linear combinations. So what is the beauty of this linear combination? Beauty is that both the components are same. This is the beauty. This is how you can recognize the given vector is inside the span or not. If in some vector both the components are not same, then you can certainly say that this vector is not inside the span of S, because in the definition of span of S, all those vectors are coming in which both the components are same. Okay, got the idea? So this is the member of span of S. This is also the member of span of S. But if similarly I say minus 5 and 0, this will never be the member of span of S, because both the components are different. Okay. So you can see that span of S is also not equal to R2. The first condition was also not satisfying. The second condition is also not satisfying. So in this case, both the conditions are not fulfilling. So in that case, span of S is not equal to, तो यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया, span of S is not equal to whole vector space R2. Why? Because inside the vector space R2, there are vectors in which there may be both components be equal, may not be equal, but inside the span of S, he is forcefully saying both the components must be equal. Okay, so of course span of S is a proper subset of R2. R2 has lots of vectors in which both the components are not equal. ठीक है, तो स्पैन ऑफ एस R2 का सबसेट होगा, बट इट विल नॉट बी इक्वल टू R2. ठीक है, और ये भी हमने बताया था आपको कि किसी सेट का जो स्पैन होता है वो हमेशा वेक्टर सब स्पेस होता है उस वेक्टर स्पेस का. तो एक ये तरीका है हमारे पास सब स्पेस जनरेट करने का कि आप कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स ले लो, चूज कर लो उस वेक्टर स्पेस से, उसका स्पैन निकाल दो, दैट विल गिव यू अ सब स्पेस. सो इन दिस वे यू कैन जनरेट लॉट्स ऑफ सब स्पेसेस, as many as you want. You can generate subspaces. So this is a technique to find out the subspaces with the help of span of that set. So span of S is a subspace, but it is not equal to whole vector space, है ना. और जिस सिचुएशन में स्पैन ऑफ एस पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस हो जाता है, ऐसे केस में बोलते हैं एस उस वेक्टर स्पेस का जनरेटिंग सेट है. अगर ये जनरेटिंग सेट के साथ साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाए तो फिर ऐसे सेट को आप क्या बोलते हो, वेक्टर स्पेस. ठीक है, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियरिटी आनी चाहिए आपको. इज अ सबस्पेस ऑफ R2 बट नॉट इक्वल टू R2. Okay, so I am giving few questions for your homework, questions for practice. अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ. मैं R3 में कराता हूँ आपको. सपोज़ करो मैंने वेक्टर स्पेस ले लिया R3, और उसके बाद हमने
एस ले लिया, 1,1, 1,1,0, 1,0,1 एंड 0,1,1, ठीक है, ये एस आ गया। अब सबसे पहले चेक करते हैं एल आई है कि नहीं। एल आई के लिए वही रटाया तरीका। अब ये जीरो कोई ऑर्डिनरी जीरो नहीं, R3 का जीरो है। यहाँ से क्या जाएगा x प्लस वाई, यहाँ से क्या जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा y, सॉरी देखो यहाँ कुछ गड़बड़ी कर दी हमने यहाँ पर। सेकेंड में क्या जाएगा x प्लस जेड, थर्ड में क्या आएगा y प्लस जेड, एंड दैट इज इक्वल टू 0,0,0, एंड दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड y प्लस जेड इक्वल टू 0। आपको फटाफट लिखना है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है सिस्टम की? दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन एंड इट्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज वेरी इजी, 1 1 0 1 0 1 0 1 1, ठीक है। अब R2 माइनस R1 कर दिया, 1 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 -1, यहाँ से 1 0 1 1, यहाँ से R3 प्लस R2। अब देखो मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, क्योंकि अभी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू मच टू यू गाइस हाउ टू कन्वर्ट अ मैट्रिक्स इनटू इक्लान फॉर्म। तो ये मैं मजदूरी करने वाला नहीं हूँ। अब आप भी कुछ मजदूरी करिए। देखिए तो मैट्रिक्स का रैंक कितना आया, 3 लीडिंग एलिमेंट तो 3 रैंक, एंड नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ 3 ही अननोन्स हैं, नंबर ऑफ अननोन्स, एंड दिस इम्प्लाइज सिस्टम हैज एट ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। और ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब बल्ले बल्ले लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। और अगर ट्रिवियल सोल्यूशन, दिस इम्प्लाइज बल्ले बल्ले, दिस इम्प्लाइज एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब आपको चेक करना है स्पैन है कि नहीं। अब बेसिस होने की पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, एल आई हो गया आपका वेक्टर, आपका सेट, बट क्या इसका स्पैन पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो रहा है, ये भी देखना है। तो यहीं बच्चे थोड़ा सा मात खा जाते हैं, यही वो समय है जहाँ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो देखिए स्पैन ऑफ एस, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। हाउ मेनी वेक्टर्स इनसाइड एस, 3 वेक्टर्स, तो 3 वेरिएबल का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। बनाते हैं, देखिए जनता की डिमांड पे फटाफट बनाया हमने ये y101 0,1,1। अब देखो ये बात लिखना बहुत ज़रूरी है कि एक्स वाई जेड कहाँ से आ रहे हैं। अगर आपने ये मिस कर दिया इसका मतलब आप लापरवाही कर रहे हैं अपने साथ में, और वेक्टर स्पेस के साथ में भी लापरवाही कर रहे हैं, जबकि उसका कोई दोष नहीं है। सो वी हैव 3 वेक्टर्स एंड 3 अननोन्स एक्स वाई जेड, सो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। बट इसको भी अच्छे से लिखो, इसको इस एक्स को अंदर पहुंचाओ, एक ही सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट करो, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड, और यहाँ से क्या आएगा वाई प्लस जेड, एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। बताओ यहाँ कोई खूबी दिख रही है आपको, कोई खूबी आपको दिख रही है यहाँ, कोई कुछ इक्वल होने के वाले चांसेस लग रहे हैं आपको, नहीं लग रहे हैं। यू कैन एक्सप्रेस एनी वेक्टर इन दिस लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म। देखो कैसे, लेट ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू R3। अब हमें दिखाना है क्या ए बी सी को मैं इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो आंसर आएगा यस, आई कैन ऑलवेज राइट। सो दिस इम्प्लाइज एंड एक्स टाइम्स 1,1,0। हमें चेक करना है क्या ये वेक्टर इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है कि नहीं।
बस यही चेक करना, अगर है देन वी आर डन। तो हमने एक R3 से एक रैंडम वेक्टर उठाया और अभी चेक करते हैं क्या ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है क्या। अगर हो गया तो हमारा काम हो गया, अगर नहीं हुआ इसका मतलब ये सेकंड कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। तो अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, यही आएगा, दैट इज इक्वल टू A, B, C। अब यहाँ से आपको, अब देखो फिर से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिख गया होगा। ये इस बार होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये इस बार कौन सा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ABC आ गया ना यहाँ पर, तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन है, मतलब ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। कब सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, जब रैंक ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। दिस इज कंडीशन फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जब आप बेसिस कर रहे होंगे तो आपको होमोजीनियस सिस्टम को भी सॉल्व करना आना चाहिए और नॉन होमोजीनियस सिस्टम को भी आना चाहिए। तो दोनों रास्तों से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप आगे पास होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एग्जाम्पल, सपोज करो मैंने R3 से एक वेक्टर उठाया, अपनी मनपसंद वेक्टर 5, 6, 7। अब मुझे चेक करना है क्या 5, 6, 7 उस सेट S के लीनियर कॉम्बिनेशन में है क्या, स्पैन के अंदर है क्या। इसका मतलब यहाँ पर A, B, C के वैल्यू में क्या रख दूँ, 5, 6, 7 रख दूँ। यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और 7, और मैं अब यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लूँ। अब तुम समझदार हो गए हो। 0, 1, 0, 1, 1 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये आ जाएगा। यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, ठीक है। बनाओ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में फटाफट इसको, R2 माइनस R1, 1, 1, 1, 5 और 0, 1 माइनस 1 0, -1 1, यहाँ से कितना आ जाएगा 1, 0, 1, 1, 7। यहाँ से इसके नीचे 0 करना है, R3 प्लस R2, 1, 1, 1, 5, यहाँ से 0, -1 1 1, 0, 1 2 8। अब बताओ, अबे 0 नहीं किया यार, इसको 0 करना था ना, 0 आ गया यहाँ पर 0। अब देखो रैंक कितना आ गया, रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी 3 आया एंड दैट इज द रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्या आ गया, कंसिस्टेंट है सिस्टम आपका। इसके मतलब इसके पास कोई ना कोई एक सोल्यूशन ज़रूर होगा। अगर सोल्यूशन होगा इसका मतलब ये वाला वेक्टर कहाँ पर बिलोंग कर जाएगा, दिस इम्प्लाइज 5, 6, 7 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ एस। तो सवाल में एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, इज 5, 6, 7 इज दिस belongs to span of S where S equal to 1, 1, 0, 1, 0, 1 एंड 0, 1, 1। ये है। इसका मतलब क्या मैं इस वेक्टर को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ क्या, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब आप एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बनाओगे, फिर वहाँ से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू सॉल्व करोगे। अगर वहाँ से वैल्यू आएंगी इसका मतलब यू कैन राइट, तो फिर ये इसके स्पेन में आएगा। अगर आपको वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया, इसका मतलब यू कैन नॉट एक्सप्रेस 5, 6, 7 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर्स। अगर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, इसका मतलब दिस वेक्टर डज नॉट बिलोंग्स टू स्पेन ऑफ एस। जैसे एक और मैं क्वेश्चन करा देता हूँ आपको इसी पे, इज 3, 1, 2, 1 बिलोंग्स टू स्पेन ऑफ 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 एंड -1, 0, 0, 0। ये तो इसका मतलब आप क्या चाह रहे हो, A1, या मैं ऐसा लिख देता हूँ x1 टाइम्स 1, 0, 1। मतलब मुझे चेक करना है क्या ये वेक्टर इसके स्पैन में है, इसका मतलब क्या ये वाला वेक्टर इन 4 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में है कि नहीं। तो सपोज करो है, मान लो है, अगर होगा तो इसके सलूशन मिलने चाहिए। फिर आपको वो कांस्टेंट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व कर लेंगे। अगर सॉल्व होकर के सलूशन आ जाता है तो है, अदरवाइज नहीं है। दिस इज इक्वल टू 3, 1। लेट मान लो
कि ऐसा है। अगर ऐसा है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से क्या आएगा, x1 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा x3 माइनस x4 कामा यहाँ से 0, यहाँ से x2 सेकंड कंपोनेंट लिख रहे हैं, और यहाँ से थर्ड कंपोनेंट कितना आ जाएगा x1 प्लस x2। ठीक है, अब फोर्थ में आ जाते हैं x1 प्लस x3 इक्वल टू 3 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 1 कामा 2 कामा 1। यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से मिला x1 प्लस x3 माइनस x4 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 इक्वल टू 2। देखा, हमने पूरे चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट कर दिया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में। अभी तक हमने जितने कंसेप्ट देखे सब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर है, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, स्पैन में है कि नहीं। इसका मतलब अगर आपने मास्टरी हासिल कर लिया ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है पास होने से। तो अब हम क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। वैसे बहुत आसान सिस्टम है, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं लिख दे रहा हूँ। x1 का कोएफिशिएंट कितना है, देखिए 1, सेकेंड इक्वेशन में 0। नाउ कम टू x2, पहले इक्वेशन में है ही नहीं, दूसरे इक्वेशन में, तीसरे इक्वेशन में, तीसरे चौथे इक्वेशन में है ही नहीं। x3 की बात करेंगे 1 0 0 1, और x4 की बात करेंगे -1 0 0 0, और लास्ट में 3 1 2 1। अब क्या करना है, अब वही रटा रटाया काम इक्लान फॉर्म में, इसको ज़ीरो करो, इसको ज़ीरो करो, तो R3 माइनस R1 एंड R4 माइनस R1, ये सारा काम हम कर देते हैं। इसके साथ बड़ी समस्या, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। 1 0 1 माइनस 1 3 0 1 0 0 1 1 माइनस 1 0, यहाँ से 1, यहाँ से -1, यहाँ से +1, यहाँ से -1 0 0 0, और यहाँ से +1, यहाँ से माइनस का 2। देखते हैं इक्लान फॉर्म में बना क्या, अभी नहीं बना है। देखो इसके नीचे 0 बट इसके नीचे 0 नहीं है, कर देते हैं। अब इस बार R3 में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ R2। 1 0 1 -1, यहाँ पर कितना 3 0 1 0 0 1। अब यहाँ से R3 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, यहाँ से -1, यहाँ से 1, और यहाँ से माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन में कोई चेंज नहीं करना है। सो हमको लॉट्स ऑफ थिंग्स मिल चुकी हैं, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। अब ध्यान से देखिए, रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल टू कितना आया, यहाँ से 4 आया। तो सिस्टम क्या है, दिस इम्प्लाइज सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट है इसलिए इसको स्पैन के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो स्पैन में होगा। अब स्पैन में जो स्पैन में लिखने के लिए जो हमारे पास एलिमेंट्स आने चाहिए, नंबर्स आने चाहिए, वो क्या होंगे, वो इस सिस्टम को सॉल्व करके मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। देखो लास्ट वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगा, x4 इक्वल टू -2, उसके ऊपर वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगा, -x3 प्लस x4 इक्वल टू -2, और यहाँ से x4 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो -3 -2 इक्वल टू -2, -2 से -2 कैंसिल आउट, तो x3 इक्वल टू कितना आ गया, 0। देखो x4 -2 आया, x3 इक्वल टू 0, दो वेरिएबल मिल गए आपको। नाउ कम टू द थर्ड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन से x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। वेरी गुड। नाउ कम टू द फर्स्ट इक्वेशन में x1 माइनस प्लस x3 माइनस x4 इक्वल टू 3, x3 0 है, x4 है -2, x1 माइनस माइनस +2 इक्वल टू 3, x1 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर आप जो लिख रहे थे ना, ये x1, ये इनकी वैल्यू भी देखो मिल गई। व्हाट आर द राइट अमाउंट ऑफ x1 x2 x3 x4 सच दैट विद दिस राइट अमाउंट ऑफ x1 x2 x3 4 दोज दैट लीनियर कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस 3, 1, 2, 1। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये आपका जो वेक्टर b है 3, 2, 3 1 2 1, दिस बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ S। ठीक है, तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्पैन। तो ये सब आप
करते रहिए क्वेश्चंस। मैं कुछ प्रैक्टिस में दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन, चेक द बेसिस। आपको सिर्फ बेसिस चेक करना है। पहले में s इक्वल टू 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0, ये R4 की बात कर रहा हूँ मैं। 1 1 0 0 -1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करो बेसिस के लिए, R4 की बेसिस के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।